So far we have discussed frequency hopping spread spectrum. Now we are going to discuss its various types like slow frequency hopping and fast frequency hopping. So first we will come to slow frequency hopping. Here an example is given that we have a frequency hopped MFHK transmitter with the given parameters like number of bits per MFSK symbol is 2. That means number of bits are 2, which gives the total number of combinations 2 to the power 2, that is 4. That means we will have 4 symbols in total, that will be 0 0, 0 1, 1 0 and 1 1. So corresponding to 4 symbols we will have 4 MFSK tones, that means 4 frequencies selected by the MFSK modulator. Then it is giving the length of the PN sequence per hop. That means for each hop the PN sequence length will be 3. That means the total number of hops will be 2 to the power 3, that is 8, because if we have the PN sequence of length 3, then that means that the total number of frequencies which will be given at the output of the frequency synthesizer, which we call as frequency hops, the output of the frequency synthesizer we consider it as frequency hops. So total we will have 8 frequency hops. Now in slow frequency hopping we know that in a single hop we will be transmitting multiple symbols. Here it is shown that in a single frequency hop 2 symbols are transmitted. The symbols are 0 1 and 1 1. See the table. 0 1 and 1 1 needs to be transmitted in a single hop. Now here for symbol in the table it is given the transmitted frequency. Here fh corresponds to the frequency of the frequency synthesizer, that means the frequency hop frequency, and f2 and f4 is corresponding the frequency which is selected by the M array FSK modulator. Now see, if we have symbol 0 1, M FSK modulator is selecting the frequency f2. If we have symbol 1 1, then M array FSK modulator is selecting the frequency f4. Now because both these symbols are being transmitted in a single hop, why? Because we are discussing slow frequency hopping. So in a single hop they are being transmitted. That means the synthesizer frequency will be constant, and that is represented by fh. That means see the transmitted frequency table again. Because single hop में मल्टीपल सिम्बल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, सिंगल फ्रीक्वेंसी हॉप में मल्टीपल सिम्बल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं. सिंगल फ्रीक्वेंसी हॉप मतलब कि फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइज़र की जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट हो गई. मल्टीपल सिम्बल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं. मल्टीपल सिम्बल्स क्या करस्पॉन्ड कर रहे हैं कि MFS के मॉड्यूलेटर जो है वो उन अलग अलग सिम्बल्स के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करेगा. क्योंकि यहाँ पे हम 2 सिम्बल्स ले रहे हैं, तो उन 2 सिम्बल्स के लिए जो दो फ्रीक्वेंसीज सेलेक्ट किया है MFS के मॉड्यूलेटर ने, वो f2 है और f4 है. इसको अगर हम वेवफॉर्म से देखना चाहें तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी. यहाँ पर हमने x एक्सिस पर टाइम दिखा रखा है और y एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी दिखा रखा है. अब यहाँ पर क्योंकि हमें एक ही फ्रीक्वेंसी हॉप दिखाना है, तो y एक्सिस पे जो fh है वो देखिए, वो हमने बस fh ही दिखाया है. अगली फ्रीक्वेंसी fh1 या उसके नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी fh2, fh3, fh4, fh5, fh6, fh7, fh8 तक नहीं गए हैं. कैसे पता कि 8 ही फ्रीक्वेंसीज होंगी? क्योंकि अभी हमने जस्ट देखा था कि हमारा PN सीक्वेंस 3 बिट का था, तो जो फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइज़र के आउटपुट में हमको 8 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी करस्पॉन्डिंग टू 2 to the power 3 इज इक्वल्स टू 8. तो यहाँ पर हमने सिर्फ FH को ही रिप्रेजेंट किया है. FH1, FH2 से लेकर हम FH8 तक नहीं गए हैं, क्योंकि एक हॉप में हमारा काम हो जा रहा है. इसलिए अब देखिए y एक्सिस पर हमने दिखाया है FH को, फिर हमने ऐड करके दिखाया है F1 के साथ, FH को ऐड किया है F2 के साथ, FH को ऐड किया है F3 के साथ और FH को ऐड किया F4 के साथ. अब मान लीजिए F1 जो फ्रीक्वेंसी MFS के मॉड्यूलेटर सेलेक्ट कर रहा था वो सिंबल 0 0 के लिए सेलेक्ट कर रहा था. F2 frequency was selected for symbol 0 1, F3 frequency was selected for symbol 1 0 and F4 frequency was selected for symbol 1 1.
लेकिन अभी जो सिंबल वी आर ट्रांसमिटिंग वो हमने देखा है कि हमारा कौन सा सिंबल है, 0 1 है और 1 1 है। तो 0 1 के करस्पॉन्डिंग MFS के मॉड्यूलेटर ने कौन सा टोन सेलेक्ट किया था, F2, और 1 1 के करस्पॉन्डिंग कौन सा टोन सेलेक्ट किया था, F4। यानी यहाँ पर अगर आप फिर से इस ग्राफ को ध्यान से देखिए तो 0 1 के करस्पॉन्डिंग इसने सेलेक्ट किया FH प्लस F2। क्यों? क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसीज़ क्या होती हैं, ऐड होकर मिलती हैं। अगर याद हो, मिक्सर जो था वो फ्रीक्वेंसीज़ का सम और डिफरेंस सिग्नल दे रहा था, और उसके आगे हमारा बैंड पास फिल्टर लगा हुआ था। मॉड्यूलेटर का ब्लॉक डायग्राम याद कीजिए, जो बैंड पास फिल्टर लगा था वो सिर्फ सम सिग्नल्स को पास कर रहा था, डिफरेंस को रिजेक्ट कर दे रहा था। सम सिग्नल्स मीन्स सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ वाले सिग्नल को। तो यहाँ पर हमने सम वाला जो सिग्नल लिया है, यानी फ्रीक्वेंसीज़ के सम वाला जो सिग्नल लिया है, वो है सिंबल 0 1 के करस्पॉन्डिंग FH प्लस F2 और सिंबल 1 1 के करस्पॉन्डिंग FH प्लस F4। ठीक, तो यहाँ 0 1 1 1 बाइनरी डेटा था हमारा, और PN सीक्वेंस जो हमने सेलेक्ट किया था 3 बिट का, वो हमारा 0 0 1 था, और उस 0 0 1 PN सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग जो हमारी फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट हुई थी फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइज़र से, वो थी FH। अब यहाँ पर ये ग्राफ देखकर क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर जो हमारा सिंबल रेट है वो हॉप रेट से ज़्यादा है। सिंबल रेट हॉप रेट से ज़्यादा है। 1/RS और 1/RH। देखिए यहाँ पर ये सिंबल ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, एक सिंबल की ड्यूरेशन 1/RS और फिर दूसरा सिंबल आपका 1 1 था, तो यहाँ पर आपका एक हॉप में 2 सिंबल्स आ गए, क्योंकि 1/RH क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 1 हॉप ड्यूरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक हॉप में आपके 2 सिंबल्स आ गए, तो प्रूव हो गया कि ये हमारी स्लो फ्रीक्वेंसी हॉपिंग थी। इसी तरह ये तो हमने मैग्नीफाइड वेव फॉर्म देखा था अपने पहले वाले स्ट्रक्चर के लिए। अब इसी तरह से आगे फर्दर भी इसको कंटिन्यू करके देखा जा सकता है।